Hello, everyone. Greetings for the day. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Hair loss, whether it is hair loss in men or hair loss in women, is a very common biological problem all over the world, not just in India. The importance of hair in enhancing the overall personality of a human being is well known. Hair is the first thing that people normally notices about you. A great hairstyle can give you the personality boost you require in doing well on both personal and professional fronts. Hair loss, on the other hand, can prove to be a real disadvantage for many people. Many young boys and girls, they start losing their hair early in life, caused by a variety of genetic, environmental, and systemic factors. Hair fall can affect anyone, regardless of their country of origin. Thankfully, effective hair treatment can actually control and even reverse the hair loss process. So, we are here to know more about hair loss, its management, and more in detail about hair care and its management. So, let's connect today with our skin expert, Dr. Jatin Sidhwa, live from Delhi to make us aware on hair fall and its management. Dr. Jatin is a well known and board certified dermatologist. He completed his MBBS from Kasturba Medical College, Mangalore, Manipal University, and MD in DVL and Meenakshi Medical College. He is currently consultant dermatologist at Sidhwa Skin Clinic at Vasant Kunj. A very warm welcome to you, Dr. Jatin Sidhwa. Good evening. Good evening. Yes, so Jatin, first of all, we would like to understand because hair loss is a very common problem. लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे और ऐसे में हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि क्या वजह है जिसके चलते हेयर लॉस होता है और दो अलग-अलग टर्म है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हेयर फॉल एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड हेयर फॉल, हेयर लॉस. ये एक ही है या अलग-अलग टर्म है? इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे. See, firstly, it's a very good time to talk about hair loss because now we are going from the monsoon season to the winter season. So at that point of time, the hair loss actually happens a lot. And most importantly, the question that you discuss, how to differentiate hair loss from a normal hair fall. So see, more than 100, almost 100 hairs falling in a day is normal. But what happens is अगर hair fall आपका एक particular period के बाद continuous चले जा रहा है, more than a month or 2 months, or you feel कि suddenly the amount of hair that you see falling probably on your bed while you're in the washroom is excessive. So that is something we need to investigate. So usko we call that as telogen effluvium. So that has to be differentiated from hair loss. Hair loss is when something called androgenetic alopecia or female patterned hair loss. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अगर मेल्स की बात करें तो साइड से टेम्पल से हेयर का फॉल होके एक बॉल्ड सा पैच दिखना स्टार्ट हो जाता है और विमेन में अगर हम देखें तो जैसे सेंटर पार्टिंग उनका होता है वो थोड़ा सा थिकेंड हो जाता है. सो व्हेन यू फील कि ये वाला जो है प्रॉब्लम्स आपको इफेक्ट करने लग गई हैं मोर देन हेयर फॉल इन जनरल, यू फील द मार्जिन इज आल्सो रिसीडिंग, दैट्स व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएट एंड उस हिसाब से द ट्रीटमेंट मोडालिटी इज आल्सो डिफरेंट. Right. You have very well described, hair loss kya hai, hair fall kya hai. The thing is that we do lose hair every day on a routine. It's a routine. It is said कि बालों का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है. तो वो झड़ते ही हैं, बहुत कॉमन चीज है. हम देखते हैं कि whenever we comb our hair after taking a wash, etc., we see certain amount of hair on our comb, on our pillows, on the floor where we reside, etc., etc. लेकिन कभी-कभी हमें लगता है कि ये यूजुअल से ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, या हो सकता है मुझे जितना हम आम भाषा में कहते हैं ना, इतना गुच्छा-गुच्छा बाल निकल रहा है, तो वो एक सिचुएशन भी आने लगती है. So in that case, on a routine, रोज बाल थोड़े-थोड़े गिर रहे हैं और अचानक से हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसका क्या कोई एक पर्टिकुलर डेफिनिशन है? कैसे हम बताएँ कि पहले हमारा जो था वो नॉर्मल था या अब जो हो रहा है वो भी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो कोई ऐसी काउंटिंग कि इतने बाल तो रोज़ झड़ेंगे ही, इसको लेके परेशान नहीं होना. कई लोग तो नहाने नहीं जाते, हेयर वॉश नहीं करते, इस डर से कि हम हेयर वॉश करेंगे तो हेयर फॉल होगा. एग्जैक्टली एज यू सेड बहुत सारे ऐसे मिथ्स एग्जिस्ट करते हैं. स्टफ लाइक कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए, कंडीशनर लगाने से हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है, नहाना कम करना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली डू नॉट मैटर. फर्स्टली यू नीड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज, क्यों हो रहा है हेयर फॉल. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन जनरल दैट यू सी स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज द रीजन फॉर हेयर फॉल. नाउ एज आई सेड स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका इंटरनल स्ट्रेस. इंटरनल स्ट्रेस जैसे कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ टेंशन इन योर माइंड
or was there any kind of such a event in your family, for example, जिसके बाद you feel the stressful event in your life has taken a toll, and regarding that आपको लग रहा है हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है? या फिर even stress can be external, something as simple as change in your water, change in where you stay, change in the weather, like right now what it is happening. तो इन सब चीजों की वजह से हेयर फॉल होता है. नाउ कमिंग टू द नंबर, वैसे तो देखो एक आर्बिट्री नंबर है, समवेयर अराउंड 50 to 100 हेयर फॉलिंग इन अ डे इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल. बट देन आप एक एक बात को गिन के नहीं देख सकते हैं कि कितना Right. हो. Because even that actually in the end, people who are very very obsessed with their hair fall and are so tense, they end up, जैसा आप बता रहे हो गुच्छे में बाल गिरते हैं, they end up taking the hair and then they bring it to the OPD also because they're so obsessed. They're like, देखो इतना hair loss हो गया हमारा. So such kind of things also happen. So firstly you have to lead a normal healthy lifestyle, and then उसके बाद if you feel कि suddenly there has been an event या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टाइम तक you feel the hair fall has happened, and even as I said आपके margins में भी आपको feel हो रहा है the hairline has reduced to quite a bit, that definitely is a point you have to consider meeting a dermatologist, because then Right. amount of hair fall अगर बहुत ज्यादा टाइम तक increase हो जाता है, what we are talking about right now is simple hair fall or hair loss that we are talking about, but there are a lot of different kinds of hair falls exist. Something like a scarring alopecia, तो उसमें क्या होता है बहुत rapidly hair fall आपका हो जाता है, and that's an autoimmune conditions. Most of them are like that. So in that case quick treatment start करना बहुत important होता है. So that's why you should always be able to see. एंड इफ यस यू फील कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना जल्दी हो सके आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं. बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है वो जो अलार्मिंग साइन है उसे समझना, अगर लग रहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है या थिनिंग हो रहा है या पार्टीशंस जो हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, बॉल्डनेस है, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. बट व्हाट वी नॉर्मली डू अदरवाइज़ डॉक्टर इज़ to go for home remedies, to go for over-the-counter products, to go for what the influencers on social, media are telling us to do. ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है और अब तो बहुत ज्यादा हो गया है बिकॉज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर सो मेनी एंड दे हैव क्विक फिक्सेस फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम. हेयर केयर को लेकर तो बहुत सारे. वैसे में ये होम रेमेडीज और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत फैशन में है, बहुत ट्रेंड में है कि अच्छा बाल झड़ रहा है तो खुद से ही हम बिना किसी से पूछे बायोटिन ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं. तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ऑल दीज, ऑन होम रेमेडीज, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, गोइंग बाय द इन्फ्लुएंसर्स एटसेट्रा? See, actually, in general, it differs to every person. किस वजह से उनको हेयर फॉल है. लेट्स से बहुत ही मिनिमल 1 मंथ में आपको लग रहा है कि जस्ट हेयर फॉल थोड़ा ज्यादा हो गया, probably you can go for your home remedies if you feel that it has worked for you in the past. But then you also need to know what kind of home remedies you're using according to your type of your hair. फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपके बाल बहुत ऑयली है, बट आप होम रेमेडीज में ऑयल लगाए जा रहे हो, तो लेट से आपको प्री एग्जिस्टिंग डैंड्रफ है जिसकी वजह से हेयर फॉल, एंड यू कीप पुटिंग ऑयल ऑन द हेयर थिंकिंग कि हेयर फॉल हमारा कम हो जाएगा, तो इन दैट केस आपका डैंड्रफ और ज्यादा बढ़ जाएगा एंड इनडायरेक्टली आपका हेयर फॉल ज्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके डाइड हेयर हैं, ब्लीच्ड हेयर हैं, उस पर आप होम रेमेडीज करे जा रहे हैं अपने हिसाब से, तो आपको यहाँ पे बालों का टेक्सचर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके ऊपर आप अपने साइड से कर रहे हैं, तो इन दैट केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर. एंड सेकेंडली एज आप बता रहे थे कि सप्लीमेंट्स, नाउ सप्लीमेंट्स इज समथिंग दैट्स अ मिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री करेंटली जो मिलता है आपको Gummies हर. these days are so much in trend. सब Exactly. Now लोग gummies are gummies in ले रहे हैं. trend. इससे पहले Yeah. liquid formulations थे. Now something else will also come up in the future. So these are mostly marketing tactics. And आप जो supplement बोलोगे आपको हर टाइप का मिलके दिया जाएगा. For example, जैसे hair fall में हम बोलते हैं कि biotin is the main thing that we have to supplement. But it's not specifically biotin जिसकी वजह से ही hair fall हो रहा है. In fact, a lot of other things जैसे zinc is something that can cause hair fall. Even something as basic as an iron deficiency anemia. For females, let's say आपका blood loss हो रहा है, and because of that the hemoglobin level is decreased. So सबसे पहले that is the baseline that you have to treat before thinking कि hair fall के लिए ये वाले अलग अलग supplements में लो. Supplements in general will always be there, but we need to investigate exactly what चीज का deficiency है आपके nutrition में या blood के serum levels में कितना कमी है उस चीज का before actually correcting that particular nutrient. Because otherwise, in general, multivitamins will be having little bit of everything, but that might not be working well for you.
So in that case, knowing what type of hair you have, firstly, what pre-existing issues that you have, अगर बालों में डैंड्रफ हो रखा है पहले से जिसकी वजह से एजिंग है, और कोई अलग भी टाइप का आपको फ्लेक्स आ रहे हैं बाल के अंदर, और यू फील की जनरलाइज्ड इचिंग है, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी द प्राइमरी कॉज जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर हम उसको ट्रीट कर देते हैं मेडिकली, तो समटाइम्स इन जनरल आपका हेयर ऑटोमेटिकली डज ग्रो बैक विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि आपने डैंड्रफ का ज़िक्र किया और ये वही वाला मौसम है, ख़ास तौर पे जिस ट्रांज़िशन में अभी हम हैं, जिसे हम आम तौर पे वेदर चेंज कहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, स्कैल्प में और फिर धीरे-धीरे डैंड्रफ दिखने लगता है और जैसा कि आपने कहा एक बहुत आम प्रैक्टिस है, हमें लगता है डैंड्रफ है यानी स्कैल्प बहुत ड्राई हो रहा है, तो वी कीप ऑन पुटिंग ऑयल रात-रात भर हम बालों में तेल लगा कर रखते हैं, अपने स्कैल्प पे तेल लगा के रखते हैं। इसको लेकर भी हम थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी आपसे चाहेंगे डॉक्टर। See, dandruff अब जो होता है, let's say people, it starts from something as early as 1 years of age and then continue till 60 years of age, and it's an autoimmune condition. So there will be periods जब dandruff आपका अचानक से बढ़ जाएगा। Now let's say मानसून का सीजन है, तो एक बॉडी में ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड उसको बोलते हैं, तो उसके इंक्रीज की वजह से वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है, उसकी वजह से सडनली आपका डैंड्रफ मानसून के टाइम में बढ़ सकता है। अगेन व्हेन इट कम टू विंटर्स आल्सो समटाइम ड्यू टू एक्सेसिव ड्राई वेदर भी आपका डैंड्रफ जो है बढ़ सकता है। इन आइदर ऑफ दीज केसेस द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू इज उस डैंड्रफ को बहुत लार्ज एक्सटेंट तक होने ना दे। इनिशियली हो सकता है आपका डैंड्रफ जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट डिजीज कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसका इनिशियल स्टेज में चलो आपको हल्के से फ्लेक्स दिख रहे हैं थोड़े अपने शर्ट के ऊपर, इवेंचुअली वो एक प्लाक टाइप का बनाने लग जाएगा अपने बाल के अंदर, दैट पीपल से पपड़ी बन रहा है बाल के अंदर। सो हुँ। व्हाट द हैबिट यूजुअली पीपल हैव इज कि वो फिंगर से उसको पोक करके पूरा निकालने का कोशिश, दैट इज द वर्स्ट हैबिट दैट यू कैन डू। बिकॉज अगर आपके नेल्स लॉन्ग है एंड यू इंजर द हेयर फॉलिकल ओवर देयर, देन डेफिनेटली वहां पे एक स्कारिंग टाइप का एलोपेशिया हो सकता है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ बेसिक हेयर फॉल जो आपको सेकेंडरी टू डैंड्रफ मिल रहा है। और डैंड्रफ का ट्रीटमेंट एज सच इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एज लॉन्ग एज यू कीप इट अंडर कंट्रोल। लॉट ऑफ टाइम अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि डैंड्रफ आपका है चले जाएगा, दे लेकिन इसके बाद वापस तो नहीं आएगा, यस वापस आ सकता है वो, लेकिन वो इतना वापस आए कि वो फ्लेक्स कॉज कर रहा है, हेयर फॉल कॉज कर रहा है, दैट विल बी मोर अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं ले रहे हैं। इफ यू टेक द राइट ट्रीटमेंट, टेक अ प्रॉपर एंटी फंगल शैम्पू, उसके कुछ वॉशेस से ही आपका जो फ्लेक्स है वो कम होने लग जाएंगे। Once all that is improved, then definitely you can go in for different procedures, या इन जनरल हेयर लॉस का ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो। बट इन जनरल देखा यही गया है कि अगर आपका प्राइमरी कॉज को आप ट्रीट कर लेते हैं, तो अगर आपका क्वालिटी ऑफ हेयर अच्छा है, इफ यू आर लेट्स से अ यंग इंडिविजुअल समवेयर अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज, तो आपका इन जनरल बॉडी के न्यूट्रिएंट स्टेटस अच्छा है, बाल अपने आप विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा लैग पीरियड ऑब्वियसली रहेगा ऑफ 2 to 3 months, एंड उसके बाद इट विल बी बैक टू व्हाट इट वाज। बिल्कुल। बालों को लेकर बहुत सारी बातें हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल वर्जिन हेयर के साथ कोई नहीं रहता। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हम अपने बालों के साथ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स, रीबॉन्डिंग, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। इसके अलावा रूटीन में भी ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर्स इस तरह के अप्लायंसेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कितना ज़्यादा हेयर लॉस या इस तरह की कंडीशंस को बढ़ा सकता है? सी हेयर लॉस के लिए तो इवेंचुअली ऑल टाइप ऑफ ब्लो ड्राइंग, एनी टाइप ऑफ हीट, सो लेट्स से हमारा बॉडी का द अमाउंट दैट हेयर कैन एडजस्ट समवेयर इज अराउंड 120 to 150 डिग्री सेल्सियस, जहां तक आपका बाल वो थर्मल उसको कर सकता है। बट यूजुअली आप जितने भी ब्लो ड्रायर्स की सेटिंग आप देखेंगे वो समवेयर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही चले जाता है। सो इन जनरल आपका जो बालों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको वो तोड़ता रहता है, विच इज द मेन कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से यू आर इजीली एबल टू कोम्ब योर हेयर। बट व्हाट हैपेंस इज सेकेंडरी इफेक्ट इज कि आपका बालों का जो जड़ से है थोड़ा सा वीकनेस स्टार्ट हो सकता है सेकेंडरी टू इट। एंड अलोंग विद दैट अगर आप हेयर प्रोडक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आप अगर मेल है तो जेल्स वैक्स लगा रहे हैं, फीमेल्स में भी अलग रहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर यू स्लीप यू वॉश ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट अगर रह गया अंदर फॉर मोर देन 24 hours, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल गो इनसाइड द स्कैल्प, कहीं ना कहीं वो एब्सॉर्ब होगा, एंड इवेंचुअली उसकी वजह से अगर प्री एग्जिस्टिंग हेयर फॉल आपको है तो वो बढ़ सकता है। अदरवाइज थोड़ा बहुत, अब जैसे लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, लॉट ऑफ पीपल कम आफ्टर दैट कि मैंने ट्रीटमेंट कराया एंड उसके बाद सडनली वो हेयर लॉस हमारा स्टार्ट हो गया है। सो इन दैट केस थोड़ा बहुत हेयर फॉल, एनी काइंड ऑफ हीट बेस्ड प्रोसीजर आप कर रहे हैं, वो यू हैव टू एक्सपेक्ट कि वो होगा।
So it is very important to maintain a balance. Let's say अब आपका कोई ऐसा event है where you have to go for it, probably you can get a treatment done, but in general बहुत ही regular treatments कराना, knowing that you have that issue of hair fall is not a very good idea. बिल्कुल। और ट्रीटमेंट के बाद भी जो सावधानियां बताई जाती हैं वो फॉलो करना कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार वो भी हम नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट्स भी हमें सही जगह से ले, जो प्रोसीजर्स हैं वो सही जगह से ले, एक्सपर्ट से ले, ये कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एज आई सेड इतने सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं ऑनलाइन हेयर ग्रोथ के लिए। आप यूट्यूब ओपन कर लेंगे तो यू कैन स्पेंड एन एंटायर नाइट जस्ट लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो, सम आर इवन वेरी वियर्ड एंड ट्रॉमेटिक टू बी ऑनेस्ट, जो लोग देखते रहते हैं वहां पे। बट सी नोइंग द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज आई सेड एक लैग पीरियड हमेशा रहेगा। लॉट ऑफ पीपल हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि बस जल्दी से लगाओ, एक महीने बाद रिजल्ट नहीं आया, आपने तो बोला था कि ये सही दवाई है तो रिजल्ट क्यों नहीं आया है? बिकॉज हेयर साइकिल हमारा डिफरेंट स्टेज में है। समटाइम्स आपका इवन जैसे हमारे बाल होता है, समथिंग कॉल्ड टीलोजन, दैट्स द एंड स्टेज ऑफ हेयर। जब आप उसको मिनॉक्सिडिल, देयर इज अ थिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर हेयर ग्रोथ, आप यूज करते हैं तो दैट टीलोजन हेयर विल इवेंचुअली फॉल फॉर द न्यू हेयर टू कम बैक। अब वो जो न्यू हेयर आएगा, द क्वालिटी ऑफ दैट विल बी इम्प्रूव। बट व्हाट हैपेंस इज बिकॉज यू सो मच इन टेंशन एंड स्ट्रेस, यू माइट फील कि अरे तो यूज करने के बाद और हेयर फॉल मेरा बढ़ गया है। तो दैट्स व्हाट, इफ यू आर टेकिंग अ राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट और आप उसको फॉलो अप रेगुलरली करते रहेंगे, वो थोड़ा सा इनिशियल 2-3 months का लैग पीरियड वो आपको देना पड़ेगा। एंड फॉलोइंग दैट, वंस द हेयर ग्रोथ विल स्टार्ट, डेफिनेटली यू विल नोटिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज। Otherwise, also there are lot of other different procedures and stuff also that are medicated that we do usually, depending upon the type of hair loss that does exist for the patient. So उस हिसाब से आपको ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंटली, हैव टू बी पेशेंट, लेट द ट्रीटमेंट, इफ यू आर टेकिंग द राइट ट्रीटमेंट इट विल वर्क इन मोस्ट केसेस। और अगर नहीं भी वर्क करता है, इफ यू आर गोइंग रेगुलरली टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, they can add some drugs या कोई ऐसा nutrient factor जहाँ कम हो रहा है, they can add it, and eventually the hair growth will start, but you have to be a little bit patient and give it that little bit of time for it to start. राइट। बॉटम लाइन ये है कि चाहे हेयर लॉस हो रहा हो या नॉर्मल से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, डैंड्रफ हो रहा हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, वी नीड टू गो एंड कंसल्ट द राइट पर्सन व्हिच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस केस। प्लीज डोंट गो फॉर होम रेमेडीज और hit or trial methods. Don't go by what the influencers are saying online, because they are at the end of the day also endorsing something. So it's all part of the market gimmick. तो उसमें मत पड़िए, don't fall prey to that. Go to the right person at the right time. जितना आप डिले से जाएंगे उतना आपका ट्रीटमेंट जो है वो और लंबा चलेगा, या हो सकता है ऑलरेडी आपने बहुत परमानेंट लॉस कर लिया हो अपने बालों का। Don't do that. Go to the right person at the right time. That's really important. डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है हेयर लॉस की प्रॉब्लम को लेकर, तो समझने के लिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आर देयर एनी टेस्ट दैट यू सजेस्ट, और जस्ट बाय द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन से कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इसका रीजन हो सकता है? इनिशियली अगर हमारे पास पेशेंट आता है, इफ आई एम एग्जामिनिंग अ पेशेंट, सो देयर समथिंग कॉल्ड अ हेयर पुल टेस्ट दैट वी डू, वेयर इन आवर डोमिनेंट हैंड वी टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ हेयर, वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ इट, एंड वी सी कि अगर ऐसे कोई स्ट्रैंड्स है जो बहुत इजीली निकल के आ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग मोर ऑन द मेडिकल साइड। बट आप अगर ये देखें कि पेशेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द हिस्ट्री। समटाइम बहुत ही माइनर छोटा सा इवेंट हुआ होता है, या फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज पुटिंग अ हेयर डाई जिसके बाद उसको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो गया, ही हैज फॉरगॉटन अबाउट इट, और उसके बाद ही इज कैरिंग ऑन विद हिज नॉर्मल एक्टिविटी, और ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ उसके लाइफ में, एंड ही जस्ट कंप्लीटली इग्नोर दैट फैक्ट। समटाइम्स समथिंग एज सिंपल एज योर डाइट, इवन डाइट लोगों का बहुत, दे आर लाइक आप अपना डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आउटसाइड बाहर का आप खाना खा रहे हैं, यू ड्रिंक स्मोक स्टफ लाइक दैट आपका रहता है, तो ये बहुत बेसलाइन कॉजेस होते हैं विच आर इजीली ट्रीटेबल। आप एटलीस्ट पहले ये वाले कॉजेज जो हैं इसको ट्रीट कर सकते हैं बिफोर थिंकिंग कि शायद कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट को ये वाला इशू आ रहा है। एंड अगर ऐसा है देन ऑब्वियसली वी डू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट डिपेंडिंग ऑन आस्किंग अगर किस वजह से। फीमेल्स में यू हैव आल्सो माइट हैव टू सी अ हार्मोनल प्रोफाइल, इज दैट a secondary cause for that? Sometimes हो सकता है postpartum hair loss होता है, आपका डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है। So in general, counseling the patient about the type of hair fall that is existing for the patient and the treatment options that are available for the patient, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, because nowadays lot of people have the money, they directly want to go for a hair transplant. That is also something people usually go for, but you also need to see कि is it required at that stage, is it very important for your life? In if let's say आप
सेलिब्रिटी या वैसे टाइप के फील्ड में है, तो इन दैट केस प्रॉब्ली हेयर ट्रांसप्लांट इज फॉर यू. बट अगर आपका जनरली स्टेज 1 स्टेज 2 का हेयर फॉल है, then there are other procedures, something like a platelet rich plasma, that you can go for. So discuss with your doctor, see what is most suitable for you, and eventually they'll all come up, you can come up with a plan which will be more convenient for you in the long run. Because as I said, hair fall के लिए अगर आप treatment seek कर रहे हैं, you are giving at least 6 months to 1 year of your life for it. तो कोई भी रिजल्ट इंस्टेंट नहीं आता, चाहे आप कुछ भी टाइप का वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेम थिंग कंटिन्यूज वो है. Bilkul. And what are the treatment options available, doctor? Medical, surgical, non-surgical? What all options do we have? ओके, कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो अगर आप ये देखें कि बेसिक जनरल हेयर लॉस है, ऐसा कोई मार्जिन उसका हेयर का कम नहीं हुआ है, पेशेंट इज एन हेल्दी इंडिविजुअल, तो यू जस्ट इन्वेस्टिगेट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इज देयर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जहां का कमी है, सो यू रिप्लेस दैट गिविंग दैट पर्टिकुलर सप्लीमेंट. अदर देन दैट, बेसिक हेयर हैबिट्स भी अगर आप पेशेंट को बता दें, इवन दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट इन लॉन्ग रन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बालों के बारे में बात करें, टेकिंग अ शावर, मेक श्योर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं आप दे रहे हो वाटर का बालों के ऊपर. सेकेंडली, आप जब शैम्पू कर रहे हैं या कंडीशनर लगा रहे हैं, मेक श्योर यू नॉट यूजिंग इट वेरी वेरी विग्रसली ऑन योर हेयर. लोगों का जनरल हैबिट्स कभी कभार इतने खराब रहते हैं कि वही एक कारण हो जाता है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है. So doing things like that, for example drying your hair, so you should not be very vigorous, because baal agar wet hai, then again they're easily more prone for breaking. Even something like you combing your wet hair also, even that can cause hair fall. So you need to know the type of comb which is particular for your hair. Agar aapke curly baal hain, the kind of comb becomes different. These are more from a cosmetic point of view, but even that has to be considered, because you will be the person jo patient ko counsel kar raha hai. He might be going to a salon, going to a hairstylist, वो अपने साइड से कॉस्मेटिक बता सकते हैं, बट यू हैव टू लुक एट अ मोर होलिस्टिक अप्रोच, जिसके हिसाब से आप पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान आप आगे का बता सकते हैं. दिस इज मोर रिगार्डिंग अबाउट द हेयर हैबिट्स. नाउ कमिंग टू द सप्लीमेंट्स एंड द ड्रग्स दैट वी यूजुअली गिव. तो आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अपार्ट, लेट्स से कि अगर पेशेंट का वो मार्जिन कम हो, ज्यादा हो रहा है, हेयर लाइन कम रिसीड हो रहा है, then there's something called minoxidil that has been the baseline, and for a lot of time minoxidil was the thing that was being used, and probably in the future also that will be something which जो आपका बाल का हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है. So that is the baseline. Lot of people have heard a lot of myths about minoxidil, which is why they don't want to pursue that. उनको ये लगता है कि minoxidil लगाने से बाल ज्यादा गिर जाते हैं. minoxidil को अगर आप लंबे समय के बाद स्टॉप कर देते हैं तो सारे बाल आपके गिर जाते हैं. सो ऑल दीज मिथ्स से इट्स बेटर कि आप थोड़ा दूर रहें. एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग मिनोक्सिडिल. आप थोड़ा सा, इफ एट अगर आपका वो हेयर लॉस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज में आप वो थोड़ा ट्राई कीजिए. बट इफ यू फील कि द मार्जिन्स हैव गॉन सो बैड कि आपका स्टेज 3 ऑनवर्ड्स हेयर फॉल है, then probably you have to go in for something kinds of procedures also. जैसे मैंने बताया, there's something called platelet rich plasma we can do in a clinic. Along with that, अगर बहुत एडवांस हो चुका है, then probably hair transplant is a good option for you in that case. कि आपके जहां से बाल फ्रंटल साइड से अगर कम हो गए, you can just transplant over there. अगर स्पेसिफिकली एक एरिया में आपको लगता है कि ज्यादा हेयर फॉल है, you can just graft it over there, and that good gives a very गुड अपीयरेंस आपका हेयर को, जब एक बार वहां पे फॉलिकल्स ग्रो आउट हो जाता है. So these are the, other than that, थोड़े और drugs that is something like finasteride. So then again, all these things are hormone में थोड़ा सा imbalance होता है. So counseling the patient is very very important right from the first session जब वो आपके पास है. बिल्कुल. तो जरूरी यही है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो बहुत है, बहुत प्रोसीजर्स भी हैं. जरूरत बस इस बात की है कि हम ज्यादा वक्त ना जाया करें, इंतजार ना करें कि शायद बाल अपने आप वापस आ जाएंगे. प्लीज गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. और जैसा कि आपने कहा कि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वी नो हेयर फॉल इज जस्ट नॉट about our physical appearance or something which is related to our health. It goes beyond that. It also impacts our psychology as well. और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारी एक व्यूअर है टीना भार्गव, उनका क्वेश्चन है, should I be concerned about the psychological impact of hair loss at a young age? किस तरह से इसे हम फील करें?
बिल्कुल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्पेशली इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स इट्स क्वाइट इग्नोर्ड आल्सो। हो सकता है बहुत सारे टेस्ट करा रहे हैं पेशेंट के, बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, बट वो साइकोलॉजिकल जो उसका बेसलाइन पे प्रॉब्लम है वही चीज को ठीक नहीं हुआ। एंड आई ऑलवेज से कि अगर doesn't matter what your age is, even when you're young and all, if you feel that you are in such kind of a stress, it's always better to take therapy. At least आप start कीजिए, discuss your issues and all, because as the dermatologist probably we might not have that much of time to treat your psychological cause. We might be able to investigate it, tell you the treatment options that exist, but वो अंदर का जो social stigma that exists in our country, that actually creates a big barrier for the patient to actually go and seek the right treatment. Especially when let's say if this person is आप 15 20 25 years वाले एज में है, you see a lot of your friends and all, आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि उनके वो हेयर में कुछ एक्सटेंशंस करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं, एंड यू सॉर्ट ऑफ फील वेरी बैड थिंकिंग कि मेरे तो क्वालिटी ऑफ हेयर ही इतने खराब है, व्हेन विल आई गेट दैट काइंड ऑफ हेयर। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि देन यू जस्ट स्टार्ट लुकिंग ऑनलाइन एंड आप हर टाइप का ट्रीटमेंट देखते रहते हो, एंड यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, इवन the ones जो cosmetic type के which claim they have a lot of benefits and all, even those are pretty expensive. And again अगर आप hair के treatment के ऊपर जाते हैं, that also does carry a little bit of cost. So in a country like India ये सब चीजें भी हमको दिमाग में रखना important रहता है. So knowing the right person who you have to go to, and secondly if you have a stressful event, आपको लग रहा है it is affecting your daily life, it is always better to treat that part at the earliest before even probably seeking help with a dermatologist. बिल्कुल। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, आपका डाइट बैलेंस हो, उसमें सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, आप स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, खुद को बिजी रखें, ये सब भी बहुत जरूरी है और ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हेयर हेल्थ में। हमारी एक और व्यूअर है पूजा शर्मा, उनका क्वेश्चन है, हाउ कैन आई बेस्ट मेंटेन द हेल्थ ऑफ माय रिमेनिंग हेयर, आई एम हैविंग सो मच ऑफ हेयर फॉल दीज डेज, क्या कर सकती हैं पूजा? सी फर्स्टली आपको ये देखना है कि आपका क्वालिटी ऑफ हेयर, ये जो आपके हेयर फॉल है, हैज इट सडनली बिकम अ लॉट, और एक क्रॉनिक स्टेज है जब आपको लग रहा है कि ये हेयर फॉल होए जा रहा है। आप बेसिक टाइप से आप अपना ये देख सकते हो कि आप डाइट में आप अपने इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। डाइट में स्टार्ट कंज्यूमिंग अ लिटिल बिट मोर प्रोटीन रिच फूड। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ऑफ हाई प्रोटीन रिच फूड्स। अगर आप वेजिटेरियन है तो इन दैट केस यू हैव टू कंज्यूम ऑल काइंड ऑफ पल्सेस, लेग्यूम्स, फिर इवन कर्ड एंड मिल्क स्टफ लाइक दैट, इसमें भी आपका प्रोटीन रहता है। देन हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस सब के अंदर भी आपके बाकी के जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कवर हो जाते हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम द डाइटरी एस्पेक्ट। नाउ सेकेंडली कमिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, probably you need to see ki, is it because of the products that you're using, because when it comes to women, lot of products on the hair in general वो apply करते रहते हैं। Sometimes a simple shampoo or a conditioner might not be suitable for your hair, उसकी वजह से आपका hair fall बढ़ सकता है। और there are a lot of serums that exist in the market which are mostly just containing different kind of oils and they claim they have a lot of benefit। अब हमको नहीं पता उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल जहां से वो सोर्स हो रहा है कहाँ है। इफ यू आर हैविंग दैट समथिंग व्हिच इज आइडियल फॉर सेंसिटिव स्कैल्प, तो वो आपका स्कैल्प रिएक्ट कर सकता है। You might cause itching, redness, or any such thing in that way. So firstly, look at the products that you're using, and then अपना डाइट लाइफस्टाइल को आप अपना इम्प्रूव कीजिए। एंड इफ यू स्टिल फील कि ये वाला प्रॉब्लम आपका नहीं जा रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर आप एक बार अपना हार्मोन इवैल्यूएशन, अपना ब्लड वर्कअप करवा लीजिए आफ्टर सीकिंग विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट डेफिनेटली। एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप विद समथिंग व्हिच इज अ सिंपल हेयर सीरम, वो भी आपका बेसिक हेयर लॉस को कम कर सकता है। इट कंटेन्स स्टफ लाइक प्रोकैपिल एंड एमिनेक्सिल, दे आर सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मिनॉक्सिडिल। तो वो वाला चीज आप अपना सीरम अपने बालों में एवरीडे आफ्टर बाथ लगाइए। एक medicated shampoo and conditioner also sometimes are more milder compared to the ones that you see outside on the market. So even little bit of a supplement depending on what your nutritional deficiency is, अगर हम start करते हैं and you are a young individual, I'm pretty sure धीरे धीरे that hair fall will go less, and अगर नहीं होता it obviously has to be investigated later on. राइट। एक और हमारी व्यूअर है फारिया बेग, उनका सवाल है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हेयर रीग्रोथ? आई एम 24 years old। The 24 years is a pretty good time अगर आपको लग रहा है कि that
आपका हेयर मार्जिन जो है वो कम हो रहा है, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। आप स्टार्ट कीजिए बेसिक सिंपल मिनॉक्सिडिल, आपका 2% पे भी आप अगर स्टार्ट करते हैं, एंड जहां पे आपका मार्जिन थिक हो गया वहां पे आप लगाना स्टार्ट कीजिए। यू हैव टू सी ऑल दी अदर फैक्टर्स, अगर कोई और रीजन है आपका हेयर फॉल का, अगर डैंड्रफ या कुछ है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज 24 years of age and your health and diet and everything is fine, you can expect very wonderful results। क्योंकि देखो जो मेन हेयर फॉल का एज रहता है is between the 20 to 30 years of age only, where on approximately around 40% of people who will eventually go bald or have that kind of hair fall, उनका वो start हो जाएगा। 30 to 40 की एज में that percentage decreases to somewhere around 25%। so at that point of time अगर आपका post 30 hair fall start हो रहा है, चांसेस ये कम है कि आगे जाके वो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा करे। बट अगेन बिकॉज यू टेन टू एज आफ्टर द एज ऑफ 30, वो ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स भी थोड़ा स्लो हो सकता है। सो व्हेन यू आर यंग, ऑब्वियसली आइडियली इट्स द बेस्ट टाइम टू सीक द करेक्ट ट्रीटमेंट एंड जस्ट स्टार्ट रेगुलरली अप्लाइंग इट। एंड आई फील इन अ अर्ली एज, अब परसेंटेज हर बंदे का डिफर कर सकता है, सो आई कैन नॉट पर्टिकुलरली से इतने परसेंट बाल वापस आ जाएंगे, बट इन जनरल यू डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट। बिल्कुल। और डॉक्टर, शुरू में भी हमने बात की कि वेदर चेंज हो रहा है और ऐसे में ये सीज़न तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर शेडिंग होती है। किस तरह से हम अपने हेयर हेल्थ को मेंटेन करें? क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? एंड स्पेसिफिकली बिकॉज़ बहुत ड्राई फ़ील होता है स्कैल्प में भी। तेल लगाएँगे तो ऑफ कोर्स वी नो कि उसको हाफ एन आवर के बाद हमें धोना है। तो क्या ऐसा करें कि स्कैल्प भी थोड़ा मॉइस्ट रहे और बाल भी हमारे हेल्दी रहे और दिखे भी अच्छे? बिल्कुल, एज यू सेड योरसेल्फ, तो ये वाला वेदर में द मेन प्रॉब्लम दैट वी हैव इज कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाता है। स्पेशली इफ यू बिलोंग टू मोर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री, दिल्ली जैसे यहाँ पे है, सडनली नाउ द वेदर हैज बिकम वेरी वेरी ड्राई, एंड बिकॉज हुँ, ऑफ दैट इवन पीपल हु हैव डिसेंट हेयर आल्सो आप फील करोगे कि ये बहुत फ्रिजी होने लग गए हैं। हुँ, सडनली राइट। दे हैव टर्न ड्राई। मेरे बाल तो ऑयली रहते थे बट अचानक से ड्राई क्यों हो गए हैं? सो अगेन फर्स्ट यू नीड टू सी अपने साइड से कि was the shampoo or conditioner that you were using meant for your hair? हो सकता है वो ऑयली हेयर के लिए हो और आपके ऑलरेडी ड्राई हेयर है एंड यू आर यूजिंग दैट, सो दैट अगेन कैन कॉज अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद नरिशमेंट ऑफ द हेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, इवन अगर आपको डैंड्रफ है तो मेक श्योर कि अगर आपके बाल फ्रिजी हो रहे हैं, बिकॉज इवन द बेसिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू कैन ऑल्सो कॉज ड्राइनेस ऑफ हेयर। आप अगर मिनोक्सिडिल का थेरेपी ले रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज ड्राइनेस ऑफ हेयर। सो लॉट ऑफ डिफरेंट कॉजेज ऑफ ड्राइनेस ऑफ हेयर एग्जिस्ट, एंड उसके बाद ये वेदर एक ऐसा चीज है जो उसको और मल्टीप्लाई कर लेता है। सो नरिशिंग ऑफ हेयर इन जनरल, आप कंडीशनर लगाइए। अगर बहुत आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि स्कैल्प में ज्यादा ना लगे, एटलीस्ट एंड्स ऑफ द हेयर में यू कैन अप्लाई। इवन योर नॉर्मल ऑयलिंग ऑल्सो, अगर लग रहा है कि बाल ड्राई हो रहा है तो एंड्स ऑफ द हेयर में यू कैन इजीली अप्लाई दैट। एंड अगर आपको लगाना है समथिंग टू अप्लाई ऑन द रूट्स, गेट अ गुड हेयर सीरम कंटेनिंग एज आई सेड प्रोकैपिल एंड एमिनेक्सिल। तो वो आप अपना स्टार्ट कर लेंगे तो दैट इज नरिशमेंट फ्रॉम द स्कैल्प। एंड बाकी बाहर से आपका जो ड्राइनेस है उसको आप काउंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग एनीथिंग लाइक अ कोकोनट ऑयल, दैट इज आल्सो गुड फॉर यू। तो वो आप स्टार्ट कीजिए। एंड देन इसके अलावा एज आई सेड, इस वेदर में अगर हेयर ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दोस कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अवॉइड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली दिस दिसंबर एंड जनवरी, दीज 2 months द वेदर बिकम्स वेरी वेरी ड्राई। तो अगर ये 2 months ऐसा नहीं है कि आप, इफ यू कैन मैनेज विदाउट दैट, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग एज वेल। ओके। अच्छा, जब भी हम हेयर प्रोसीजर्स की या खास तौर पे ट्रीटमेंट के तौर पर जो आपने सर्जिकल, नॉन सर्जिकल वेज़ बताए थे, कई बार जब इसके लिए हम जाते हैं तो ऑफ कोर्स वी नो कि जो क्वालिफाइड डर्मैट्स हैं आपकी तरह उनकी क्लिनिक्स है, वहाँ पे ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स खुद करते हैं, अपनी निगरानी में कराते हैं। इसके अलावा बिकॉज़ यू नो इकोनॉमी इज़ आल्सो एसोसिएटेड राइट? फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट भी है। पार्लर्स, सलून्स भी कई बार क्लेम करते हैं दैट दे कैन डू दीज़ यू नो प्रोसीजर्स ऑफ कोर्स उनका जो रेट होगा वो थोड़ा कम होगा। कई बार ऐसे भी क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं करते या उनकी निगरानी में नहीं करते लेकिन दूसरे लोग करते हैं या बड़े-बड़े क्लिनिक्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स भी हैं जो ये क्लेम करते हैं। ऐसे में हम पॉकेट फ्रेंडली देखें या क्या देखें? मतलब ये चूज़ करना भी कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर जाए सही ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि जब हमको फ्री ऑफर या कम रेट पता चलता है तो हमको डेफिनिटली वो ल्योर करता है। तो क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल, अब जैसे इन इंडिया दिस डज बिकम अ इशू बिकॉज यू हैव टू सी कि कॉस्ट इज आल्सो समथिंग। अगर आप
लेट्स से पीआरपी का ही आप एक सेशन कराते हैं, तो यू विल सी वेरी वेरिएबल रेट्स, समथिंग फ्रॉम इनिशियली फ्यू थाउजेंड्स टू लॉट ऑफ हायर रेट्स एज वेल. एंड फर्स्टली नोइंग कि कौन कर रहा है प्रोसीजर, दैट बिकम्स अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, बिकॉज there are a lot of cosmetic centers and they will use the term कि हमारे यहाँ dermatologist staff है, but आप अगर उनके पास actually में जाओगे, then you get to know कि the person who's doing it is not qualified. This is when we are talking, when you are ready to go to somebody who's a dermatologist. आप अगर बात कर रहे हैं जैसे बता रहे हो going to a beauty parlor and stuff like that, तो वहां पे भी nowadays तो apparently they're doing micro needling and stuff, which जो कि एक qualified medical practitioner को ही करना चाहिए, but that also they are doing. So in that case, it becomes a little bit dangerous because as I said, मैंने बताया था एलोपेशिया एक नॉन स्कारिंग टाइप का, एक स्कारिंग टाइप का भी है. तो अगर बाय ट्रॉमा आपने कुछ ऐसा प्रोसीजर कर लिया जिसकी वजह से वहां हेयर फॉलिकल्स में स्कारिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, देन यू हैव एंडेड अप इन अ सूप. फिर वो एक अलग प्रॉब्लम आप डील कर रहे हो. हो सकता है आपका हेयर फॉल बहुत ही इनिशियल स्टेजेस का था, मे बी उसमें प्रोसीजर की नीड भी नहीं थी, जस्ट करेक्टिंग अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर माइट हैव हेल्प्ड इट. तो नोइंग दैट काइंड ऑफ हेयर फॉल, थोड़ा बहुत आप इंटरनेट पे आप ये देख सकते हो कि भाई व्हाट इज द टाइप ऑफ हेयर फॉल दैट डज एग्जिस्ट, तो उससे आप कौन से ग्रेड में आपका है, यहाँ तक इट शुड बी गुड. बट अगर आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑनलाइन सर्च करने लग जाते हैं, गो टू दी पार्लर्स एंड स्टफ लाइक दैट, नाउ सी दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब, दे विल आल्सो ट्राई टू सेल यू व्हाट आर ट्रीटमेंट दैट डज एग्जिस्ट फ्रॉम देयर. बट प्रॉब्लम ये है कि इफ इट डज नॉट वर्क फॉर यू, एंड द वर्स्ट पार्ट एज आई सेड, अगर स्कारिंग हो गया, फॉर एग्जांपल यू डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शन टू इट. नाउ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर कोई डॉक्टर प्रोसीजर करता है तो 100% वो सेफ है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. बट अगर वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर नोज बाय हिमसेल्फ कि व्हाट द इशू इज, व्हाट द रिएक्शन हैज हैपेंड, व्हाई हैज इट हैपेंड, एंड हाउ टू ट्रीट इट. और वो एक सिंपल सा अगर कोई क्रीम या वट एवर थिंग डिपेंडिंग ऑन द नीड, वो देखिए चीज कॉम्प्लिकेट नहीं होगी कभी. बट द सेम थिंग इफ यू गो टू अ नॉन क्वालिफाइड पर्सन, that thing he might not have an idea what it is, and then वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देगा, and then you somehow, we've seen very bad cases also happen जहाँ now you don't have an option, जब patient has reached to such a hair fall, scarring हो गया है कि even suggesting hair transplant में भी आपको उसको पहले बताना पड़ेगा that the prognosis might not be good because the quality of the hair follicle only has destructed to such an extent that regrowing of hair becomes very very difficult in that case. बिल्कुल। और डॉक्टर, क्योंकि हमने बात डाइट पर भी की है और आपने कहा कि प्रोटीन रिच डाइट हो, ये भी देखना ज़रूरी है। प्रोटीन के अलावा हमारी थाली में और क्या-क्या होना चाहिए? कौन से ऐसे फूड, फ्रूट्स हैं जो हमारे बालों को स्पेशली नरिश करते हैं? See, when it comes to the nutritional aspect, अगर थोड़ा technical होके मैं बताऊं तो then zinc is something which is important, copper is something that is important, micronutrient में selenium is something that is important, and other than that your B complex, specifically B12 is something which is very important for your hair. But अब एक एक उसको करके it will not be very practical to know what is there. आप अपना बेसिक पोर्शन कंट्रोल आप डाइट के अंदर देखिए, मेक श्योर कि द प्रोटीन जितना आपको रिक्वायर्ड है इन अ डे, दैट डेफिनेटली आपके प्लेट के ऊपर है. सेकेंडली आपके मैक्रोज और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने हो गए, तो उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फाइबर रिलेटेड जितने भी आपके वेजिटेबल्स रहते हैं वो होना भी आपके डाइट में इंपॉर्टेंट है. एंड फाइनली फ्रेश फ्रूट्स का कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रूट्स में कैलोरीज हो सकता है कम हो, बट हर टाइप का न्यूट्रिएंट वो कवर कर सकते हैं. फ्रेश फ्रूट्स लाइक योर ऑरेंजेस, लेमन, इन जनरल ये सब स्किन के ग्लो के लिए और ये सब के लिए भी हेल्प करते हैं. एंड सेकेंडली आपका अगर फॉर एग्जांपल आयरन का डेफिशिएंसी है, स्टफ लाइक एन एप्पल स्टफ, ये सब चीजें भी आपका इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा. सो एक होलिस्टिक डाइट आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मोर देन हैविंग अ गुड डाइट, नॉट हैविंग अ बैड डाइट इज समथिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू माइट बी फॉलोइंग अ डाइट फॉर 4 or 5 days, बट वीकेंड्स पे जाके यू टेंड टू बिंज ऑन अल्कोहल, ड्रिंक और ईट वॉट एवर यू फील लाइक, क्लेमिंग यू वो चीट डे है. तो अगर आपका बॉडी इन जनरल फिट है, यू माइट से एक दिन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल आपका वेट ज्यादा है, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आपका ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो रहा है और आप स्वीट डिश डेजर्ट्स खाए जा रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अगर 5 days 6 days अच्छा डाइट खा रहे हो उससे आपके बाल का ग्रोथ वापस आ जाएगा. सो लॉन्ग टर्म चीजें हैं, जैसा कि डाइट में हम बात करते हैं, एनीथिंग एनी हैबिट गुड और बैड टेक्स a little bit of time, तो वो थोड़ा सा initially start कीजिए, and once the results come आप देखोगे yourself will get motivated towards that and reach your end goal, which is like having a good hair. Right. And doctor, before we sum up the whole session, any take home message, कोई बात जो आप कहना चाहो आखिरी में?
बिल्कुल। अभी जैसा मैंने कहा, ये वाला जो सीजन है, थोड़ा सा हेयर फॉल आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है आपने कभी अपनी लाइफ में फेस ना किया हो हेयर फॉल, एंड सडनली लाइक मेरे साथ इस सीजन में ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली राइट नाउ, सडनली द पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल। तो ऐसे केस में वो आपका हेयर क्वालिटी विल डिक्रीज। वो वाला चीज के लिए फर्स्टली डोंट स्ट्रेस आउट। अगर इफ इट इज द फर्स्ट टाइम दिस थिंग इज हैपनिंग टू यू, इट्स फाइन। अगर थोड़े बहुत बाल गिर भी रहे हैं, अगर विद इन अ मंथ वो वाला आपको लग रहा है गेट्स बैक टू नॉर्मल, देन इट्स फाइन। बट अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस इंक्रीज होए जा रहा है एंड इट्स बीन मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स, देन यू हैव टू सी कि इज देयर एनी स्ट्रेसफुल इवेंट इन योर लाइफ जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। और इट्स बेटर जितना जल्दी हो सके, अगर आपको लग रहा है विद इन लेट से 1 और 2 वीक्स, देयर लॉट ऑफ कंडीशंस ऐसे भी रहते हैं जस्ट सडनली ओवरनाइट आपको लगेगा आपके बाल ग्रे हो गए हैं, सडनली आपको विद इन 1 वीक 2 वीक्स लग रहा है मेरे बाल more than 50% चले गए, तो that is a emergency. You have to go to a dermatologist. Treatment आपको seek करना important है. So as I said again, I'm repeating the same thing again and again, go to a qualified dermatologist. That becomes very important because treatment options इतने हैं and the, as you said, amount of money that you have is limited. So उस Right. चक्कर में you should not waste your initial money on stuff like that. You'll get even more demotivated, more stressful, और उससे हेयर फॉल बढ़ जाएगा. So just know the right person to go to. मेंटेन अ हेल्दी डाइट, स्टे स्ट्रेस फ्री, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करेंगे एंड लेट दिस सीजन पास. उसमें आप अपना थोड़ा सा डाइट से अपने आप को ठीक रखेंगे एंड इवेंचुअली आपका हेयर फॉल जो है इट विल शो यू गुड रिजल्ट्स. Thank you so very much, Dr. Jatin Sadhwa. It was wonderful talking to you, and I'm sure our viewers are going to, use your tips a lot, especially during this weather. Thank you so very much. Thank you. Pleasure talking to you. Bye bye. Bye-bye. And viewers, thank you for your active participation in today's session. Stay connected, stay spotless, stay happy, and stay healthy. Goodbye. Have a good day.